اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ٹاپک آرسینکم البم ہے۔ آرسینکم البم آرسینیس ایسڈ یعنی کہ سفید سینکیا۔ سینکیا قدیم زمانہ میں خودکشی کے لیے یا دوسروں کو زہر سے ہلاک کرنے کے لیے کم و بیش سے استعمال ہوتی رہی ہے۔ جب اس دوا سے زہریلا اثر پیدا کیا جاتا تھا، اس صورت میں ہاضمہ کی نالی اور بعض اوقات جسم کی پلکمی جھلیاں بھی اس سے متحرک ہو جاتی، جس کے ساتھ حد سے زیادہ کمزوری پائی جاتی، گو نظام عصبی پر چندہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ عجیب بات دیکھی جاتی کہ سینکیا کا اثر ہاضمہ کی نالی کے کسی حصہ پر بھی نہیں ہوتا تھا، اور نہ تو قے ہی ہوتی تھی، نہ ہی معدے میں درد، لیکن مریض کی طاقت یکدم سلب ہو جاتی تھی، یکدم ختم ہو جاتی تھی، اور مریض بار بار غش کھا جاتا تھا، جس سے کہ مریض کو موت صرف 5-6 گھنٹوں میں آ پاتی تھی۔ تیسری صورت میں مریض عام طور پر کم از کم 6 دن تک زندہ رہتا تھا، بعض اوقات زیادہ دنوں تک، اور بعض دفعہ لمبی بیماری کے بعد بھی بچ جاتا تھا۔ ایسی حالت میں ہاضمہ کی نالی کا ورم اگرچہ دوسرے سے چوتھے دن تک رہتا، مگر بعد ازاں بلغمی جھلیوں میں ورم پہنچ جاتا تھا، اور پھر مریض میں اعصابی تکالیف، از قسم مرگی وغیرہ پیدا ہو جاتی، اور اس طرح مریض کی بیماری لمبی ہو کر مریض کی زندگی کا موجب بنتی۔ اگر انہی تینوں قسم کے مریضوں کو بغور دیکھا جائے تو ہمیں آرسینکم کی علامت صاف صاف نظر آتی ہے، یعنی پہاڑی علاقوں میں سینکیا کی تھوڑی مقدار گھوڑوں کو دی جاتی ہے۔ یہ سینکیا کھانے والے گھوڑے بہت جلد پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بوجھ لے جا سکتے ہیں، اور موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بے نظر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل اصول کے مطابق اور ٹھیک معلوم ہوتی ہے، کیونکہ گھوڑوں کی دماغی حالت سینکیا کی دماغی حالت کے بالکل قریب ہے۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو کبھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، ہر وقت پہلو بدلتا رہتا ہے۔ اس میں ڈر بھی پایا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرسینکم گھاس اور سبز کھانے والے جانداروں کی ایک خاص دوا ہے، جبکہ نقص فہمی کا گوشت کھانے والوں کی۔ بعض پہاڑی علاقوں میں مرد اور عورتیں بھی سینکیا کھانے کی عادی ہیں۔ جب ایک دفعہ کسی ڈاکٹر نے ایک سینکیا کھانے والے پہاڑی سے اس کے متعلق سوال کیا کہ پہاڑی حضرت طبیعت ٹھیک نہیں، تو پہاڑی نے جواب دیا کہ سینکیا پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، روکھی سوکھی اور موٹی چھوٹی روٹیوں اور سبز ترکاریوں کی ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، ہمیں خوش رکھتی ہے۔ گوشت کھانے والوں کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہم بغیر سینکیے کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ پہاڑوں والے لوگ، یہ نہیں بتلایا جا سکتا کہ سینکیا ان پہاڑی لوگوں پر کس قدر زہریلا اثر کرتی ہے یا ان کو کس قدر فائدہ پہنچاتی ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ سینکیا کھانے والے پہاڑی لوگوں کا جسم اور جلد نہایت نفیس عمدہ ہوتی ہے، بال نہایت خوبصورت ہوتے ہیں۔ سینکیا کھانے والے گھوڑوں کی کھال بھی نہایت نفیس ہوا کرتی ہے،
इंसानों में अगर जल्द खुरदरी हो, उस पर चिट्टे हों और जल्द पर खारिश हो तो सैकिया एक बेहतरीन दवाई होगी। रात के वक्त दुख और दर्द के दौरे मरीज को बिस्तर पर छूना पड़ता है। जल्द में जलन, जख्मों में सोजश पैदा करने वाला दर्द, रोजाना आने वाला और नौबती बुखारों पर जिस्म के दाने, आँखों और पेटों में वर्म, हर दफ़ा खाने के बाद कैर, मैदा में जलन, तलवों में और पैरों के अंगूठों में आंवले, सोजश पैदा करने वाले जख्म। नई बीमारियों में जहाँ आसनकम पैदा करता है, हर जगह जलन पाई जाती है। आसनकम जलन वाली बीमारियों में इस्तेमाल होती है। ये इस कदर ज़्यादा होती है कि किसी और दवा में नहीं पाई जाती। मगर सबसे अजीब बात इसमें यह है कि इस जलन को गर्मी से आराम मिलता है। वो सेकने से हो, मुब्तला शुदा हिस्सा को आग के नज़दीक कर देने से हो, या गर्म पानी से हो, या गर्म पानी लगाने से हो, उसको आराम आता है। और दर्द सर हमेशा ठंडक से कम होते हैं, गर्मी जगह पे उसके दर्द बढ़ जाते हैं। मरीज चाहता है कि इसको गर्म कपड़े में ढक कर रखा जाए। अगर इसकी सर्दी बहुत जल्द करती है, गर्मी अच्छी मालूम होती है, नींद हद से ज़्यादा, कमज़ोरी, कै, परेशानी, मुद्दा किसी बू वगैरह मौजूद हो तो दुनिया में कोई दुआ बगैर आसनकम की इसको नफ़ा नहीं पहुँचा सकती। आसनकम की एक बड़ी भारी अलामत बेचैनी है। गुनूदगी की हालत में बेचैनी और कहराना पाया जाता है। मरीज़ बेचैन होता है, इसके अंदर मौत का डर होता है, उसके दिमाग में परेशान कौन ख्यालात भरे होते हैं, इसलिए वो इन सब बातों की वजह से एक मुकाम पर नहीं रह सकता, बल्कि वो हमेशा पहलू बदल बदल कर लेटता है। इस बेचैनी और घबराहट को देखकर कुदरती तौर पर असाबी तकालीफ की तस्वीर नज़रों के सामने आती है। यही वजह है कि ये दवा असाबी तकालीफ में खुसूसन राशा खोरिया में भी मुफीद है। नींद की हालत में मरीज चौंक जाता है और इसकी जिसमें झटके पाए जाते हैं। मरीज हद से ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सा भरा हुआ होता है, बल्कि झुंझलाया हुआ होता है, नाउम्मीद और नागुफ्ता मुसीबत का शिकार। आसनकम हाजमा की पूरी नाली पर असर करता है। होंठ खुश्क हो जाते हैं, फट जाते हैं और पपड़ी जम जाती है। मरीज को हर वक्त ज़बान फिरकर अपने होठों को तर करना पड़ता है। मुंह में जख्म और आंवले बढ़ जाते हैं या मुंह आ जाता है। थोड़ी सी ग़िज़ा पानी भी मैदे में खराबी पैदा कर देती है, जिससे क्या दस्त शुरू हो जाते हैं। बवासीर में गर्म पानी से अब दस्त लेने से आराम। आसनकम की कमज़ोरी, मरीज को ख्वाहिश होती है कि हर हरकत करता रहे, इसको हरकत कराई जाए। मरीज थोड़ी सी मेहनत से निढाल हो जाता है, जबकि मरीज लेटा रहता है, इसकी कमज़ोरी महसूस नहीं होती, मगर ज़रा सी हरकत करने पर वो अपने आप को नहायत कमज़ोर पाता है। और फूलने की कुव्वत दवा की एक खास अलामत है। जो इस्तिस्काक को पहुंच चुकी हो। इस दवाई में खास अलामत यह है कि कमज़ोरी लकाहत व दर्जा कमाल की होती है। खफीफ सी हरकत पर और साथ ही बेचैनी, तशवीश, जलन, ना बुझने वाली प्यास, मगर मरीज थोड़ा थोड़ा बार बार पीता है। आराम करते वक्त दर्द में ज़्यादती होती है, ठंड से तकलीफ बढ़ जाती है। तमाम तकालीफ 12 बजे से 2 बजे तक रहती है। मौत का डर लगा रहता है, खुदकुशी करने पर आमादा होता है। माली खोलिया, माली नुकसान के बायस जब माली खोलिया कारजी हो जाए तो ये
तो मरीज यकीन कर बैठे कि वो मारे फाकों के मर जाएगा, तो ये दवाई मजहर हुआ करती है। जबकि रातें बेख्वाबी और तशवीश में गुजरती, बेचैनी रहती है, मौत का डर लगा रहता है। जब मरीज को ये फहम हो कि उसकी बीमारी लाइलाज है, वो चिड़चिड़ापन, पस्त हिम्मत और बेचैन रहता है, तो ऐसे हालात में ये दवाई मुफीद है। कई किस्म के सर दर्दों में ये दवाई काम आती है। मसलन दर्द से दौरे के से सर दर्द, जबकि सर ऊपर उठाने के साथ ही क्या आ जाती है, और साथ ही शदीद सर चक्कर तशवीश होती है। दर्द शकीका में जब सफरा का दर्द हो, सर में चक्कर आते हैं, जी मुतलाता है। मौसम सरमा के जुकाम के लिए ये दवाई मुफीद है, जबकि पतला पानी नाक से बहता हो और ऊपर के होंठ को जला देता हो। मरीज को ऐसा मालूम होता है कि उसकी नाक बंद हुई है, माथे में दर्द, रोशनी निकाबले बर्दाश्त, चीखे बहुत ताज़ा हवा में कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन जलन का किसी कदर खुली हवा में जाने से आराम होता है। आग के नज़दीक बैठने से जलन ज़्यादा होती है। सोजिश मैदा में ये दवाई काम आती है, जबकि दर्द हो, प्यास हो, बेचैनी हो, इस हालात हो। ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश करता है, लेकिन ठंडा पानी पीने से तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसा महसूस होता है कि मैदा पर आग रखी हुई है। आइसक्रीम, मलाईदार बर्फ़ खाने के बायस और नींद बर्फ़ का पानी पीने से जो तकलीफ पैदा हो और मैदा भरा हुआ महसूस हो, तना हुआ, बुकाइयाँ कहते, तो ये आर्सेनिकम अक्सर है। जब ठंडी एशिया के लगातार पीने से, अच्छा से शराब रोफी करने से मैदा में मुसलसल दमन, नज़ली सोजिश का अर्जा हो, तो मैदा में जलनदार दर्दें हों, तो प्यास, बेचैनी, तशवीश बहुत ज़्यादा हो, तो ये दवाई नाफे हुआ करती है। मैदा के जरियाने खून में भी ये दवाई नाफे है, जब मरीज में कमी खून और अंदर छड़ांत पैदा किए हुए लामतों का शिकार हों। सरतान मैदा, कैंसर ऑफ स्टमक में भी इस दवाई को देने से जलनदार दर्दों और तकलीफ को आराम आ जाता है। मलेरिया बुखार में जब जिगर बढ़ गया हो, तो इसमें चुभनदार दर्दें हों, तो ये नहाई कारआमद है। हैजा में भी ये जादू का असर करती है, जबकि और हैजा है इतफाल शीर ख्वार, जो कच्ची गज़ा के पखाने आते हो, खाना खाने के बाद पखाना करता हो, और बच्चा जल्दी जल्दी कमज़ोर होता जाता हो और नडाल होता जाता हो। नब्ती बुखारों में भी इसकी शोहरत कम नहीं है। नब्ती बुखारों में जबकि लर्जा बाकायदा खुलकर ना लगता हो, हरारत बहुत तेज़ हो, गर्म पानी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो, ठंडी एशिया से कप कपी शुरू हो जाए, पसीना आने से आराम ना आता, जिगर और तेली बढ़ जाने से ड्रॉप्सी का अर्जा हो, खसरा और सुर्ख बुखार में भी इसको नहीं भूलना चाहिए। गुर्दों की मजम्मत सोजिश में भी ये बहुत कारगर साबित होती है, जबकि लुआबदार जल्दियों के खिलाफ में ओवरीज कैविटीज में रस भरने से इसका हो गया हो। इमराज जल्द में भी इसका रुतबा कम नहीं कि जब उसमें खुश खुरदरी छिलकेदार फुंसियाँ नमूदार हों और इस इंसान का जिस्म जो है ना, मछली की जिस्म की मानंद हो। और ये इसकी एक बात याद रखने की ये है कि अगर ये दवाई मरते वक्त ऊंची पोटेंसी में मरीज को दी जाए, तो आखिरी दम तक वो सुकून में रहता है।
اور اگر یہ آخری دم میں اس مریض کو دی جائے تو وہ نا اگر تو وہ مرنے کے قریب ہوگا تو وہ آسانی سے اس کی جان نکل جائے گی، نہیں تو وہ بچنے کی امید ہوگی تو وہ بالکل ٹھاک ہو جائے گا۔ نقطہ نمبر 2 یہ ہے کہ مریض حلقاؤں کے روک تھام کے لیے اس دوائی کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے مریض سے بچا جا سکتا ہے مرض سے۔ اس کو زیادہ اونچی پوٹینسی میں استعمال نہیں کرنے چاہیے اور بار بار اونچی پوٹینسی کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اس کی 32x یا 30 یا 200 یہ بہت ہی پوٹینسیاں شاندار نتائج پیدا کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آرسینکم البم کا مطلب سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے جتنا تھا میں نے بتا دیا۔ رب رکھا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔